So Aryan, you have doubt in fluid mosaic model, okay? बचा सेल मेम्ब्रेन का जो मॉडल है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल दिए थे, बट the widely accepted and the most acceptable, you can say, model was given by Singer and Nicholson. So उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था that cell membrane, it is composed of lipid bilayer. It is composed of lipid bilayer. Means that bilayer means two layer. So two layers of fat present है, okay, with globular proteins embedded. और क्या है साथ में? Proteins embedded है. In this image, this is one layer of fat and this is a layer of fat. There are two layers of fat, okay, lipid layer हो गई, बीच बीच में ये प्रोटीन embedded है. This is what is fluid mosaic model that was given by, or that was proposed by Singer and Nicholson. Okay. लिपिड बाइलेयर की मैं बात करूं, यहाँ पर लिपिड बाइलेयर में दो कंपोनेंट्स हैं. वन इज दिस फॉस्फेट ग्रुप, दिस ऑरेंज वन इज फॉस्फेट, ओके, दिस वन इज द फैट. दिस इन से लिपिड एंड दिस इज फॉस्फेट हेड. तो ये एक लेयर हो गई, दूसरी लेयर हो गई. दिस इज व्हाट इज फॉस्फेट फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. फॉस्फेट ग्रुप है, लिपिड है, बाइलेयर. ओके, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इज देयर एंड इसमें बीच बीच में है. तो दिस इज व्हाट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होता है बच्चा? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन देखो, मैंने बताया था, I told you that two types of protein will be there. जो प्रोटीन एम्बेडेड है वो टू टाइप्स के होंगे. वन इज दिस पेरिफेरल, मतलब जो सरफेस पे होंगे. सी दिस वन इज ओनली एट द सरफेस. वाला देखो, ये वाला प्रोटीन, these are only on the surface of this membrane. But second type is integral protein or the intrinsic protein, जो एम्बेडेड है पूरे प्रोटीन में, सॉरी सेल मेम्ब्रेन में. ओके, जो एम्बेडेड है पूरी तरह से सेल मेम्ब्रेन में, वो दो तरह से हो सकता है बच्चा. वन इज जो सेल मेम्ब्रेन की दोनों लेयर को क्रॉस करेगा, इट इज स्पैनिंग बोथ द लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. वन इज दैट इज जस्ट हाफली एम्बेडेड लाइक दिस. ओके, सो two types of integral or intrinsic protein will be there. One is this, जो दोनों मेम्ब्रेन्स को, दोनों लेयर्स को स्पैन करेगा सेल मेम्ब्रेन की, एंड वन इज जो हाफली एम्बेडेड होगा सेल मेम्ब्रेन में. सो दिस वन इज जो दोनों लेयर्स को स्पैन कर रहा है. दिस इज व्हाट इज ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, विच इज अ काइंड ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन. कौन सा क्वेश्चन है? आई डोंट हैव मॉड्यूल विद मी राइट नाउ. कैन यू प्लीज राइट द क्वेश्चन सो दैट आई कैन आंसर दैट. slide, okay, this was the first slide which yes, you can ask your doubt, bacha. Yes, ma'am, I have a doubt that you have told that protoplast is a thing without cell wall. Yes. So, ma'am, can we say that plant cell is also a protoplast? You can say plant cell is a protoplast, but generally protoplast term हम वहाँ use करते हैं जब हम experimental basis के लिए किसी भी सेल का सेल वॉल रिमूव करते हैं. So plant cell के पास सेल वॉल होता है
in the nature, मतलब अगर हम लोग नेचुरल सेल की बात करें तो सेल वॉल इज देयर इन द प्लांट, बट व्हेन वी रिमूव द सेल वॉल deliberately for our experimental purpose, then we can say the protoplast is there. Cell without a cell wall is a protoplast. It is a naked cell, you can say, which doesn't have any cell wall. Okay. ma'am. Yes, ma'am. One more doubt. Yes. Ma'am, you told that cytosol is the thing without if we remove all the cell organelles that are present in cytoplasm. Yes. So, ma'am, if in a cell nucleus is present, so that cell can be called as cytosol. No, 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 बच्चा. Cytosol is the only liquid part. Nucleus भी निकालना पड़ेगा and cell organelles भी निकालना But पड़ेगा. ma'am, in the discovery part, you have given that cytoplasm consists of cell organelles plus inclusions plus cytosol. So nucleus comes in the protoplasm part. Yes, nucleus comes in the protoplasm part because it is a living part. Protoplasm क्या है? Protoplasm is the living part of the cell. So if we keep nucleus, then it would not be considered as cytosol, right? Hello. Yes, ma'am. हाँ, मतलब न्यूक्लियस भी निकालना पड़ेगा. साइटोसोल इज ओनली द वाटर ऑफ द स्विमिंग पूल, यू कैन से ओनली द वाटर पार्ट. Okay, ma'am. Okay, Ma'am, rest all the things we have to exclude from that. If you can see this overview part of the cell, तो उसमें भी देखो साइटोसोल, साइटोप्लाज्म को हमने साइटोसोल में अलग से डिवाइड किया और न्यूक्लियस इज द another part. Okay, so cytoplasm में only the non-living part will be there. जिसमें yes, आ जाएगा, जो fluid part है वो आ जाएगा, plus inclusions and cytoskeleton. not living part. Okay. Okay. Yes, ma'am. In this, what are microtubules and microfilaments? Bacha, we will discuss about it very soon. Once we complete all these cell organelles, cell wall, cell membrane, then we will come to this part also. And ma'am, one more doubt. Yeah. That ma'am, chromatin is present in nucleus or nucleolus. Chromatin is present in the nucleus. Bacha. Nucleolus is the part where ribosomal RNA is being formed. वहाँ पर RNA का synthesis होता है. So chromatin is present nucleus के अंदर you will find the chromatin material, not in the nucleolus. Okay, ma'am. Thank you. Okay. Aaron, I will send the PDF today only. I'll send on the group. Okay. ह्यूमन सेल प्रोटोप्लास्ट यू कैन से, क्योंकि उसके पास सेल वॉल नहीं होता है तो बोल सकते हो, बट जनरली हम लोग प्रोटोप्लास्ट टर्म उन सेल्स के लिए यूज करते हैं जिनका सेल वॉल रिमूव कर देते हैं, बट ह्यूमंस के पास सेल वॉल है ही नहीं. ओके. Microtubule, microfilaments we will discuss at the end of the chapter. पहले we are going to discuss all the cell organelle. ऑक्सीजोम्स बच्चा, ऑक्सीजोम्स एटीपीएस या फिर एटीपी सिंथेटेज एंजाइम होती है, उससे बोलते हैं. वी विल स्टडी दैट इन माइटोकॉन्ड्रिया. जब माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस करेंगे वी विल स्टडी दैट. अर्नव, प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल विदाउट अ सेल वॉल. श्रेया, अगर गोल्जी ऑपरेटर्स अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं करा है, आई थिंक हम लोग गोल्जी ऑपरेटर्स एक बार डिस्कस कर लें, देन यू विल गेट टू नो कि क्या होगा अगर हम सेल्स गोल्जी ऑपरेटर्स निकाल देंगे. गोल्जी ऑपरेटर्स इज अ पार्ट जहां पर सारी जितने भी प्रोटीन्स है हमारी बॉडी के वो मॉडिफाई होते हैं टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शंस. तो वो सब फंक्शंस नहीं होंगे. Yes, Arnav, you can say that.
Module, I don't have it with me right now. If you can write the question that you're asking. शौर्य, हम लोग लाइसोसोम पे बच्चा अभी तक नहीं पहुंचे हैं. I will discuss it once it will be done in the class as well. सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल. सेल वॉल भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली डिस्कस करने वाले हैं. सो यू विल गेट यू नो सेल वॉल इज डेड. इट डजंट परफॉर्म एनी फंक्शन, सो इट इज फ्रीली परमिएबल. नॉन पोलर एंड पोलर, बच्चा पोलर उस चीज को बोल देंगे जब वो कुछ चार्ज कैरी कर रहा है. ओके, एंड नॉन पोलर इट इज जस्ट लाइंग दैट इट इज नॉट कैरिंग एनी चार्ज. लाइक लिपिड, फैटी एसिड की जो चेन है सेल मेम्ब्रेन में, they are not carrying any charge. पार्ट जो होता है PO4 माइनस, हम उसे लिखते हैं, राइट? PO4 नेगेटिव, सो इट इज चार्ज, इट इज पोलर. Yes, Shreya, it is completely permeable. The cell wall is completely permeable. Dhruv, ergastic substances are the non-living part in the cell. फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है. अब वो ग्लूकोज कहाँ स्टोर होगा बच्चा? सेल में ही होगा ना, प्लांट्स में. तो बट इट इज नॉट द लिविंग पार्ट, इट इज अ नॉन लिविंग पार्ट, सो इट इज काइंड ऑफ अ ergastic substance. Once nucleus and nucleolus, we haven't discussed it so far, बट मैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ. न्यूक्लियस का पार्ट होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक देयर इज अ डार्कली स्टेन्ड बॉडी प्रेजेंट दैट इज नोन एज न्यूक्लियोलस, एंड इट इज द साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम. वहां पे राइबोसोम्स का सिंथेसिस होता है. वी विल डिस्कस इट व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट न्यूक्लियस इन डिटेल. यस कार्तिक, प्लीज आस्क. The nucleoplasm is everything that is lying inside the nucleus. जैसे साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म इज द पार्ट जो सेल के अंदर है. वैसे न्यूक्लियोप्लाज्म इज द पार्ट जो न्यूक्लियस के अंदर है. Why amoeba is called immortal? Okay, interesting question. बच्चा अमीबा एक्चुअली क्या होता है ना, अमीबा में बच्चा बाइनरी फ्यूजन होता है, काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आपने पढ़ा होगा. जैसे दिस इज पेरेंट सेल ऑफ अमीबा. जब वो डिवाइड होता है तो इट फॉर्म्स टू डॉटर सेल. सिंगल पेरेंट getting divided and forming two daughter cells. Okay, so इसमें क्या हो रहा है? पेरेंट सेल सीधे डिवाइड हो गया दो डॉटर सेल्स में, बट डेथ नहीं हुई पेरेंट की, बिकॉज मतलब देयर इज नो मॉर्टल रिमेन्स, यू कैन से. कोई बॉडी नहीं रह जाती है बाद में. तो इसे इट इज दिस टाइप ऑफ डिवीजन कैन बी कॉल्ड, इट इज इमोर्टल. ओके, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट. ओके, दो तरह से ट्रांसपोर्ट हो सकता है थ्रू सेल मेम्ब्रेन. वन इज द पैसिव वन, अनदर इज एक्टिव वन. पैसिव, just feel like you are throwing a stone from the peak of a mountain. Okay, you are standing on the peak of the mountain and you are throwing a stone. तो बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी होगी. You just need a little push and it will be thrown out. But अगर उस माउंटेन से नीचे जाके उस स्टोन को वापस ऊपर लेकर जाना होगा, so you will be needing a lot of energy, right? So passive transport is a kind of transport through the cell membrane where energy is not required, but in the case of active transport you do require a lot of energy in the form of ATP.
Okay, this is the first difference. Passive transport doesn't require any energy. Active transport does require energy. Then second is concentration gradient. Okay, passive transport में देखो बच्चा जो transport हो रहा है, it is from higher concentration to lower concentration. Higher से lower जा रहे हो. But active transport में you are going from lower concentration to higher concentration, which is against the concentration gradient. So this is the second difference. Okay, passive is the along the concentration gradient from higher to lower, but active transport is against the concentration gradient, that is from lower to higher. Is it clear now? Arnav, mitosis, meiosis, we are not going to discuss here. Arnav, that is the part of cell division, and we do it in NACGS part in 9th standard, and 10th standard में वो आपका topic है, so you will discuss it in 10th standard. राइबोसोम बच्चा पलाडे पार्टिकल्स, राइबोसोम का नाम दिया था पलाडे ने, मिस्टर पलाडे. पलाडे वाज अ साइंटिस्ट. मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. अभी हम लोगों ने ये सब डिस्कस नहीं करा है, डोंट वरी. पलाडे पार्टिकल्स भी बोलते हैं उनको, राइबोसोम्स, पलाडे पार्टिकल्स. अमीबा में बच्चा सिंपल डिफ्यूजन होता है. वंश, अमीबा में सिंपल डिफ्यूजन होता है. शौर्य, क्रोमैटिन मटेरियल हम लोग डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट न्यूक्लियस. अगर थोड़ा सा जानना है तो क्रोमैटिन इज नथिंग बट डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन. डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन. डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन. तो डीएनए को रैप करने के लिए, एक्चुअली डीएनए का जो लेंथ होता है इट इज अराउंड 2 मीटर, 2 to 3 मीटर, बट स्टिल वो एक सेल के अंदर जो हमें दिखता भी नहीं है, उसका साइज इतना है सेल का, उसके न्यूक्लियस में इट फिट्स. हाउ? बिकॉज हिस्टोन प्रोटीन्स दे टाइटली coil this DNA around them, and this is what is chromatin. बच्चा NADPH है, NADH भी एक एनर्जी करेंसी होती है, एंड FADH भी एक एनर्जी करेंसी होती है, बट इनका जो एनर्जी वेटेज यू कैन से इट इज इक्वल टू ATP. इसको हम ATP के टर्म्स में ही लेते हैं. दे आर हायर एनर्जी मॉलिक्यूल देन ATP. फॉर एग्जांपल 1 NADH has 3 ATP molecule and one FADH2 has around energy of around 2 ATP. Dhruv, why are you asking about ribosome, mitochondria, lysosome and all that? Bacha, we haven't discussed it yet. Once ATP is adenosine triphosphate. It is energy currency of our cell. Adenosine triphosphate. Energy currency. Now, mitosis and meiosis is not the part of your class right now. Shrestha, what you have written? Can you just copy and paste again? I kind of lost it. ATP बच्चा एनर्जी करेंसी होती है. ATP से हमारी बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड होती है, क्योंकि इसके अंदर जो बॉन्ड होते हैं वो हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं. व्हेन इट ब्रेक्स it provide energy, and that energy will be utilized in performing various life process.
FADH की full form is 7 adenine dinucleotide. Shaurya, histone एक kind of proteins हैं. They are a kind of proteins जो DNA को अपने around coil करते हैं. We haven't discussed about it yet in our classes. अगर आप आगे से आगे questions पूछोगे तो बहुत सारे ऐसे words मुझे बताने पड़ेंगे जो भी आपने नहीं सुने हैं. That's why I am telling you, please wait till we finish all those things. जहां तक अभी पढ़ा है वहां से डाउट्स पूछोगे तो आई विल बी एबल टू आंसर. Which questions are given in module? मॉड्यूल में अभी दिए होंगे ध्रुव, दिए होंगे, बट हम लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है ना. जब तक पढ़ा नहीं है तब तक कैसे मैं आपको बता दूं. लेट मी डिस्कस इट, लेट मी फिनिश द चैप्टर, then you will be able to solve all the question in the modules, but let me at least finish it. Okay, जहां तक पार्ट किया है वहां से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मॉड्यूल में, you should do that first. वो होने चाहिए. अगर वहां से कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी. यस शौर्य, मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो. वो पार्ट सॉल्व करो उसमें से जहां से हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. वहां से कोई क्वेश्चन है तो जस्ट सॉल्व इट, अदरवाइज बाकी अभी छोड़ दो. once we will finish this chapter you will be able to do all those questions, don't worry. बच्चा मोज़ैक का मतलब होता है वंश, अ पैटर्न. ओके, मोज़ैक मीन्स अ पैटर्न. तो सेल मेम्ब्रेन में भी इट इज काइंड ऑफ अ पैटर्न दैट इज फॉर्मिंग. फॉर एग्जांपल फॉस्फेट लिपिड बाइलेयर है, बीच बीच में प्रोटीन्स एम्बेडेड है, देन देयर इज ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड. तो एक पैटर्न टाइप का बन रहा है, दैट इज व्हाट इज मोज़ैक. फॉस्फेट एंड फैटी एसिड, और ये लो आर्यन. क्रेब्स साइकिल आपके पार्ट में नहीं है अभी. व्हाई डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन दैट? इट इज नॉट इन योर सिलेबस राइट नाउ. Where is it in the module? Can you just take a screenshot or a picture of that in module and send it to me on WhatsApp? It is not the part of your syllabus right now, bachcha. Krebs cycle is not the part of your syllabus. Krebs cycle just एक word दिया होगा or something like that कि it happens in mitochondria. Shrestha, which point? Yes, आर्यन. आर्यन Krebs cycle में brief description दूंगी because it is the function, or you can say Krebs cycle happens in the mitochondria. But हम लोगों ने अभी mitochondria discuss नहीं किया है. So अभी discuss नहीं किया है तो उसको पूछने का मतलब नहीं है, because you won't be able to understand. वो पूरा slide मुझे आपको समझाना पड़ेगा. Just wait till we do or till we complete all this. Okay? श्रेष्ठा बच्चा देखो, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का सेल मेम्ब्रेन बना है. फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, तीन वर्ड्स आ रहे हैं इसमें. फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. ओके, फॉस्फो इज दिस पार्ट, ऑरेंज पार्ट यू कैन सी, दिस इज द फॉस्फेट ग्रुप. एक्चुअली फॉस्फेट हेड बोलते हैं इसे. ओके, तो ये हो गया फॉस्फेट. देन यहाँ से दो टेल्स अराइज होते हैं. these two tails are made up of fatty acid or you can say lipid. Fatty acid is nothing but lipid only. So phospholipid
एंड दो लेयर्स है यहाँ पर, वन इज दिस, अदर इज दिस, दिस इज बाइलेयर. तो फॉस्फेट फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. इज इट क्लियर नाउ? No, Vansh, protoplasm doesn't have cell wall. Protoplasm is cytoplasm plus nucleoplasm. It doesn't have cell wall. Cell wall तो उसके बाहर present होता है protoplasm के. Yes, hydro means water. Phobia means डर लगना, right? Hate. So hydrophobic means water hater. And hydrophilic, philic मतलब loving होता है. So water loving. Why phosphate group is hydrophilic? Can anyone tell me? Why phosphate head is hydrophilic and lipid part is hydrophobic? What is the difference between cytoplasm and nucleoplasm? Protoplasm you can see here. Protoplasm consists of cytoplasm and the nucleoplasm. Cytoplasm में देखो कौन कौन सा पार्ट आ गया? सेल ऑर्गेनल, फ्यूजन बॉडी जिसको हम अर्गेस्टिक सब्सटेंसेस वगैरह बोल सकते हैं, दैट इज द नॉन लिविंग पार्ट, प्लस फ्लूइड पार्ट, ऑल द ब्लू पार्ट, फ्लूइड पार्ट. दिस इज साइटोप्लाज्म. प्लस न्यूक्लियस अलग से है. न्यूक्लियस इज डिफरेंट. ये जितना भी न्यूक्लियस दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म. सो वंश अभी क्लियर हुआ? साइटोप्लाज्म इज दिस पार्ट. क्या क्या आ जाएगा? सेल ऑर्गेनल, साइटोसोल और जितना भी अर्गेस्टिक सब्सटेंसेस या नॉन लिविंग पार्ट, इंक्लूजन बॉडीज, ये सब आ जाएगा. एंड न्यूक्लियस के अंदर जितना पार्ट है दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म. गॉट इट? व्हाट इज इंटरसेल्यूलर? ओके, देखो दो टर्म्स होते हैं. हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, लाइक दिस, आसपास मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, राइट? ऐसे दीज आर सेल्स, बहुत सारे सेल्स हैं. ओके, अब अगर दो सेल्स के बीच की बात हो रही है, दो सेल्स के बीच की बात हो रही है, सो आई कैन से यहाँ पर जो फ्लूइड, लेट्स से यहाँ पर कोई फ्लूइड इन दो सेल्स के बीच में, देयर इज सम फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट. दो सेल्स की अगर बात हो रही है तो आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरसेल्यूलर. दो स्कूल में कंपटीशन होता है, हमारे स्कूल में दूसरे स्कूल से कंपटीशन होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर स्कूल कंपटीशन, राइट? जब बहुत सारे स्कूल्स के बीच में कंपटीशन होता है, इंटर स्कूल कंपटीशन. जस्ट लाइक दैट, जब सेल्स के बीच की बात हो रही होती है देन वी कैन से इंटरसेल्यूलर. बट अगर एक सेल के अंदर की बात हो रही है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस सिंगल सेल, then it is known as intracellular. I hope it is clear now. दो सेल की बात और एक सिंगल सेल की बात, right? If I'm talking about different cells, then it is intercellular. If I'm talking about only single cell, then it is intracellular. Clear? Okay. Any other doubt, बच्चा?
Glyco means carbohydrate. Shaurya, what are you saying? Glyco means carbohydrate. Carbohydrate मतलब क्या होता है? शुगर, like glucose, fructose, ये सब. Okay. So this is carbohydrate. जब ग्लाइको मतलब कोई भी कार्बोहाइड्रेट अगर फैट के साथ ज्वाइन होता है तो इट इज ग्लाइकोलिपिड. जब ये कार्बोहाइड्रेट किसी प्रोटीन के साथ ज्वाइन होता है तो ग्लाइकोप्रोटीन. बच्चा कोलेस्ट्रॉल भी समवॉट फैट लाइक सब्सटेंस होता है. Cholesterol is also a type of lipid. डीएनए एंड आरएनए एक्सप्लेन करो. ओके, अगर किसी का और डाउट नहीं है कोई तो ये एक्सप्लेन कर सकती हूँ. अगर किसी का सेल चैप्टर से डाउट और है तो प्लीज आस्क. कार्तिक, कहाँ से पढ़ के बच्चा डाउट्स लेकर आ रहे हो? अल्फा हेलिक्स प्रोटीन कहाँ पढ़ा था ये? अभी तक मैंने तो डिस्कस किया नहीं है. ये कहाँ पे भी पढ़ा? One cell membrane is semi permeable membrane. सेल मेम्ब्रेन का काम है कि वो सेमी परमिएबिलिटी, उसकी प्रॉपर्टी है. ये सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी है दैट इट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. परमिएबल मतलब परमिशन देती है, बट सेमी मतलब हाफ परमिशन देती है. मतलब सेलेक्ट, इट इज एक्चुअली सेलेक्टिवली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेलेक्ट करती है कि क्या अंदर जाना चाहिए सेल के और क्या बाहर जाना चाहिए, एंड देन उसे परमिशन देती है. तो इट इज सेलेक्टिवली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. Karthik, it is in the module, but where it is mentioned in the module? Can you tell me? वो पार्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है अभी तक? बच्चे डीएनए एंड आरएनए दोनों ही हमारा मतलब इट इज अ काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड. दोनों को क्या बोल सकते हैं? दोनों क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड होते हैं. You can say genetic material, जिनके अंदर डीएनए आरएनए दे कैरी जीन्स. और जीन्स क्या करते हैं? जीन्स ही हमारी बॉडी में पर्टिकुलर फंक्शंस करवाते हैं. पर्टिकुलर फंक्शंस करवाते हैं. बच्चा अल्फा हेलिक्स प्रोटीन अभी आप लोगों को कोई पूछेगा नहीं. इट इज एक्चुअली द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन से डिफरेंट स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. ये आपका डायग्राम में ऐसे ही हो सकता है बिकॉज डायग्राम में कुछ हाई लेवल के पार्ट्स भी लेबल कर देते हैं. बट अभी आप लोगों से कोई नहीं पूछेगा व्हाट इज अल्फा हेलिक्स प्रोटीन. डोंट वरी.
DNA is deoxyribonucleic acid, RNA is ribonucleic acid. DNA deoxyribonucleic acid and RNA ribonucleic acid. Glucose is a type of carbohydrate. Glucose is sugar. Sugar comes under carbohydrate, not protein. हमारी बॉडी में डीएनए होता है या आरएनए होता है? कैन एनीवन टेल मी? हाँ, जिसका डाउट्स क्लियर हो गया दे कैन लीव, दे आर फ्री टू लीव. हमारी बॉडी में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, राइट, बट आरएनए नहीं होता हमारी बॉडी में. Is it absent? Is it totally absent in RNA? Yes, yes, yes. We have DNA as our genetic material, but RNA भी बनता है that forms through DNA. ठीक है, DNA से RNA बनता है और RNA से फिर प्रोटीन बनते हैं and then प्रोटीन फंक्शंस करते हैं अलग अलग तरह से. तो जितने भी हमारी बॉडी में कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटीन. अंटिल डीएनए के पास क्या है? डीएनए को जेनेटिक मटेरियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि डीएनए के पास सारी इंफॉर्मेशन है, इट हैज ऑल द कोड्स. उस कोड को रीड करता है आरएनए, आरएनए बनता है, देन उस आरएनए के कोड को रीड करता है प्रोटीन, एक प्रोटीन बनता है, एंड देन वो प्रोटीन एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं. Okay, so DNA is a genetic material, but DNA से RNA भी बनता है, RNA से प्रोटीन भी बनता है, and that is how a particular function performed in the body. Diffusion and cell division में बहुत difference है बच्चा. Diffusion is something जो अब higher concentration से lower concentration में move कर रही है. Cell division is a type of you can say method of forming new cell. तो डिफ्यूजन में, डिफ्यूजन एंड सेल डिवीजन बहुत डिफरेंस है, दोनों बिल्कुल अलग है. डिफ्यूजन में चीज मूव कर रही है फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, और जब सेल डिवाइड हो रहा है टू फॉर्म न्यू सेल, दैट इज सेल डिवीजन. मैम, इट इज टोल्ड दैट इफ वी स्ट्रेच ह्यूमन डीएनए इट विल गो टिल मून. अरे ऐसे ही कुछ फैक्ट ऐसे लिख देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. इट इज जस्ट यू कैन से, मतलब इट इज जस्ट बोल देते हैं ना. लेट्स से आप बोलते हो कि हाँ मम्मी अर्जेंटली बुला रही हैं, तो यू से इट के हाँ 2 मिनट्स में आई एम कमिंग, बट जरूरी थोड़ी है वो 2 मिनट्स ही होंगे बिल्कुल. यू जस्ट से इट, राइट, ऐसे ही वो बोल देते हैं, क्योंकि डीएनए का अमाउंट सच में ह्यूमन के अंदर बहुत ज्यादा है. एक सेल के अंदर बच्चा 2 to 3 मीटर लॉन्ग डीएनए है, एंड वी हैव बिलियंस ऑफ सेल. सो सोचो कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट होगा एक ह्यूमन की बॉडी में. ओके, सो इट इज अ वे ऑफ सेइंग. ध्रुव, व्हाट इज प्रोकैरियोटिक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल? बताओ. अच्छा, यू वांट मी टू आस्क क्वेश्चन? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या होता है? एक भी आंसर नहीं मिला. प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस, कम ऑन. Okay, I'm getting
some answers. One is primitive. Yes. Which one is primitive? Shreya? Shrestha, you have written correctly. Dhruv, you have also written. And have a proper nucleus. Yes, I have received many answers and most of them are correct. Very good. But I was asking कि prokaryotic cell में there is no nucleus, which is fine. But nucleus की जगह एक word हम use करते हैं. क्या present होता है? What is that is present? There is no nucleus. But genetic material तो है. Shrestha has given the answer correctly. Very good. Adya, your answer is correct. Very good. Aryan, correct. Dhruv, wrong. Nucleolus तो यूकैरियोटिक में होता है. This is not nucleolus. एक और word है, जल्दी से ढूंढो. Karthik, correct answer. Very good. Shreya, I was asking कि न्यूक्लियस नहीं होता है प्रोकैरियोट्स में. There is no perfect nucleus. But genetic material तो होता है ना, and उसको क्या बोलते हैं? There is a term that we use in place of nucleus. वंश DNA प्रोकैरियोट्स में भी होता है, यूकैरियोट्स में भी होता है. But what is the term that we use in place of nucleus? Shivesh, very good. Correct answer. श्रेया, डीएनए दोनों में होता है बच्चा. जेनेटिक मटेरियल है, बट जेनेटिक मटेरियल. आर्यन, यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर. वेरी गुड. वंश, प्लीज साइटोप्लाज्म नहीं. वंश, कुछ स्टडीज नहीं कर रहे हो. बच्चा, उनका प्रोकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही साइटोप्लाज्म में इट इज लाइंग जस्ट लाइक दैट, डजंट हैव एनी मेम्ब्रेन. क्या बोलते हैं हियर? न्यूक्लियोइड. याद आया? न्यूक्लियोइड. वंश, remember now? श्रेया और किसने? ध्रुव. ध्रुव, श्रेया, वंश, याद आया अभी? Yes. So in place of nucleus, they have nucleoid, which means it doesn't have any membrane. The genetic material is just lying within the cytoplasm. Example of prokaryotes are Protista kingdom. No,
शौर्य नो, प्रोटिस्टा इज यूकैरियोट। मैं क्लियर कर देती हूँ अभी। जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चा, तो 5 किंगडम्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। किंगडम में 5 कौन कौन से हैं? मेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, अंटे एंड एनिमेलिया। ये हम लोग डाइवर्सिटी अभी चैप्टर पढ़ेंगे, देन वी विल डिस्कस इन डिटेल, सब हम लोग पढ़ेंगे। बट 5 किंगडम्स में क्या है? मोनेरा में कौन से आते हैं? मोनेरा इज जनरली प्रोकैरियोटिक, दिस वन इज प्रोकैरियोटिक। इसमें मोस्टली सब बैक्टीरियाज आ जाते हैं। ओके, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है, बट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो सिंगल सेल्ड होंगे। ओके, फॉर एग्जांपल अमीबा, अमीबा इसमें आता है। फंजाई, फंजाई यूकैरियोटिक है, प्लस मल्टीसेल्युलर मोस्टली। जैसे ईस्ट वाला जो है, ईस्ट आपने सुना होगा, ईस्ट इज अ फंगस। ये फंगस यूनिसेल्युलर होता है। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं, नेम अ यूनिसेल्युलर फंजाई, योर आंसर विल बी ईस्ट। एंड अगेन यूकैरियोटिक, multicellular animals again eukaryotic and multicellular। प्रोकैरियोटिक यू कैन से सिर्फ बैक्टीरिया वाले हैं मोनेरा किंगडम, बाकी सब यूकैरियोटिक है, बाकी सब मल्टीसेल्युलर है। सिर्फ प्रोटिस्टा ऐसा है जो यूकैरियोटिक है बट सिंगल सेल है, यूनिसेल्युलर। शौर्य अभी क्लियर हुआ? प्रोटिस्टा किंगडम इज यूकैरियोटिक एंड यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा में आएंगे बच्चा। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, इट इज also known as cyanobacteria. It's a type of bacteria बच्चा, and it is comes under the kingdom Monera. Prokaryotic है ये। Yes, Aryan, you can leave if you don't have any doubt. Okay. Shaurya, blue green algae, cyanobacteria comes under the kingdom Monera. It is a prokaryotic organism. Anyone, any other doubt? Okay, then you are free to leave if you don't have any doubt. Let us just end the meeting. Okay, chalo, bye bye. Stay safe. Good night. Bye. Bye bye.